Hey students, once again I welcome you back to this online video lecture series. In the previous video lecture series, I have discussed chapter 2 with you. In chapter 2, we have covered part 1, part 2, and we were doing part 3. Part 3, sub part A, I have already discussed with you. I'll be discussing part B with you. In part B, the topics which I am going to cover include a popular perception of kings, जनता में राजा की छवि, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, उपज बढ़ाने के तरीके, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में मतभेद, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स, भूमि अनुदान और नए ग्रामीण अभिजात वर्ग. So let us quickly discuss the topics one by one. A popular perception of kings. राजा की छवि जनता के बीच में किस तरह की होती थी, ये हमें शिलालेखों से नहीं पता चलता है. बहुत से जानकारी हमें शिलालेखों से नहीं मिलता है. What did subjects think about the rulers? Obviously, inscriptions do not provide all the answers. In fact, ordinary people rarely left account of their thoughts and experiences. जो आम जनता होती थी, उन्होंने ऐसे कुछ लिखित स्रोत नहीं छोड़ा जिनसे हमें ये पता चले कि उस समय राजा की छवि उसकी प्रजा के बीच में किस तरह की होती थी. Historians have tried to solve their problems by examining stories contained in anthologies such as the Jatakas and the Panchatantra. इतिहासकारों ने इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जताका की कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियों का सहारा लिया. Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. इनमें से बहुत से किस्से कहानियाँ मौखिक रूप से बोली जाती थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. बाद में इन कहानियों को लिखने की प्रथा आरंभ हुई. The Jatakas were written in Pali around the middle of the first millennium CE. जताका की कहानियों को पाली में लिखा गया, जो कि उस समय आम लोगों के बोलचाल की भाषा थी. One story known as Ganda Tindu Jataka describes the plight of the subjects of a wicked king. जताका में एक कुटिल राजा की कहानी थी जिससे उसकी प्रजा, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, सारे लोग उससे बहुत परेशान थे. उसकी कुटिलता से सब उसके अत्याचारों से परेशान होकर बहुत परेशान थे और उससे निपटने के, उससे मुक्ति के मार्ग ढूंढने लगे. The king went in disgust to find out what his subjects thought about him. एक दिन, जैसा कि इस कहानी में लिखा है, एक दिन राजा ने सोचा कि वो अपने प्रजा के बीच में जाए और ये जानने की कोशिश करे कि प्रजा उसके बारे में, उसके लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. So he went to find out what his subjects thought about him. Each one of them cursed him for his miseries, complaining that they were attacked by the robbers at night and by tax collectors during the day. जिन भी लोगों से राजा मिले, सारे लोगों ने उन्हें बद्दुआ दी, उन्हें कर्ज किया और सब लोग यही कहते रहे कि उनके दुख का कारण राजा हैं. उनका कहना था कि रात को डकैत उन्हें परेशान करते हैं और दिन के समय राजा के मंत्री उनसे भारी कर वसूलते हैं. उनके पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय गाँवों को छोड़कर जंगल में रहने की. So this was all about the story.
as this story indicates the relation between a king and his subject, तो इस कहानी से हमें राजा की छवि के बारे में पता चलता है कि किस तरह से राजा की छवि थी उसके प्रजा के बीच में, उसके आम लोगों के बीच में. Especially the rural population could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. राजा हमेशा अपने खजाने को भरने में लगा रहता था और उससे हमेशा लोगों से ऊंचे मूल्य पर कर लिया करता था. Escaping into the forest remained an option as reflected in Jataka's story. Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for taxes also came to be adopted. तो ये हमें जताका की कहानियों से पता चलता है कि लोगों के पास जंगल में रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं था. Meanwhile, other strategies, और भी बहुत से तरीके धीरे धीरे लोगों ने ईजाद करना शुरू किया उपज बढ़ाने के लिए. तो हमारा सेकंड टॉपिक है उपज बढ़ाने के तरीके, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज? One such strategy was the shift to plow agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from the 6th century BC. छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें ये पता चलता है कि गंगा और कावेरी के आसपास के इलाकों में लोगों ने हल के द्वारा खेती करना शुरू किया और इससे उपज बढ़ने लगी. The iron tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall. तो जिस भी क्षेत्र में भारी वर्षा होती थी उस क्षेत्र में हल के प्रयोग से उपज धीरे धीरे बढ़ने लगा. Moreover, in some parts of the Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation. गंगा के आसपास के क्षेत्रों में अब चावल की खेती भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होने लगी. While the iron plowshare led to a growth in the agriculture productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent. हल जो है इसका यूज़ या इसका उपयोग उपमहाद्वीप तक ही ये सीमित रह गई. अब हम देखेंगे द कल्टीवेटर्स इन द एरियाज विच वर सेमी एरिड. क्षेत्र जो अर्ध शुष्क थे जैसे कि पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और केंद्रीय हिस्सों में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों ने कुदाल कृषि का अभ्यास किया जो उनके लिए काफ़ी बेहतर था. हल का प्रयोग हम देख सकते हैं कि गंगा और कावेरी के आसपास के क्षेत्रों में होने लगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड था. जो क्षेत्र अर्ध शुष्क थे सेमी एरिड लैंड्स में जैसे कि पंजाब और राजस्थान में, इन एरियाज़ में लोगों ने एग्रीकल्चर सिस्टम प्रैक्टिस करना शुरू किया जिसे हम कुदाल कृषि भी कहते हैं. Another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation, mainly through wells and tanks and less commonly canals. Communities as well as individuals organized the construction of irrigation works. The later usually powerful men, including kings, often recorded such activities in inscription. लोगों ने
कैनल्स जिसे हम कहते हैं, कैनल्स, वेल्स, कुएं, टैंक और नहरों के माध्यम से भी सिंचाई करना शुरू किया। तो ये था उपज बढ़ाने के तरीके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रामीण समाज में मतभेद। ग्रामीण समाज में मतभेद का क्या कारण था? What were the difference? What were the actual reason why there was a difference in the rural society? उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषि में लगे लोगों के बीच मतभेद शुरू हो गया। So, while these technologies often lead to an increase in production, the benefits were very uneven. What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. तो जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती गई, इसके साथ ही लोगों के बीच मतभेद उजागर होने लगे। उत्तरी भारत में लोगों को 3 समूहों में विभाजित किया गया: भूमिहीन कृषि मजदूर, छोटे किसान, साथ ही साथ बड़े भूमिधारक या जमींदार। गृहपति शब्द अक्सर पाली ग्रंथ में प्रयोग किया गया था। तो ये जो है, ये शब्द हम कह सकते हैं कि छोटे ज़मींदारों के लिए या किसानों के लिए प्रयोग किया गया। संगम ग्रंथ से भी हमें बड़े ज़मींदार या वेलार, उज्वर, दासों का उल्लेख मिलता है। तो ये था कि ग्रामीण समाज में डिफरेंसेस क्यों हो रहे थे, वाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी। So we get information from the Buddhist text, Sangam literature, and etc. Now our next topic is भूमि अनुदान और नए ग्रामीण अभिजात वर्ग, land grants and new rural elites. From the early centuries of the Common Era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscription. Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plates. तो राजाओं द्वारा भूमि अनुदान शिलालेखों में दर्ज किया जाता था। ये प्रथा काफ़ी पुरानी थी। जब भी कोई राजा भूमि दान करते थे तो वो उसको शिलालेखों में, चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो पत्थरों पे या तम्र के पत्तों पर लिखवाते थे, ताकि इसका एक रिकॉर्ड रखा जा सके। अधिकांश रिकॉर्ड आमतौर पर धार्मिक संस्थानों, ब्राह्मणों को दिए गए अनुदान के बारे में होता था। मुख्यतः राजा ब्राह्मणों को और संस्थानों को भूमि दान में देते थे, but were on copper which were probably given as the record of the transaction to those who received the land. The records that have been survived are generally about the grants to religious institutions or to the Brahmins. Most of the inscriptions were in Sanskrit. शिलालेख जो होते थे वो संस्कृत में लिखे होते थे। In some cases, and especially from the 7th century onwards, the part of the inscription was in Sanskrit, while the rest was in local language such as Tamil or Telugu. 7th century, अगर हम 7वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय संस्कृत में शिलालेख लिखे जाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे लोकल लैंग्वेज, जो कि उस समय के बोलचाल की भाषा थी, तमिल और तेलुगु, उसमें भी कुछ शिलालेख मिलते हैं जिसमें भूमि अनुदान की बात कही गई है। Women, according to a legal Sanskrit text, women were not having any right on the land. So right to land was not assessed to the women. But हमें
संस्कृत के एक टेक्स्ट से, संस्कृत के ग्रंथ से हमें ये पता चला है कि प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, was married to one of the very important king of another dynasty, powerful king of the Deccan, Vatakas, who were powerful in Deccan. According to the Sanskrit legal text, women were not supposed to have an independent access to the resources such as land. However, the inscription indicates that Prabhavati had access to land. तो हमें जो शिलालेख मिले हैं उससे, संस्कृत में लिखे शिलालेख से ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्त जो थी, उन्हें जो भूमि मिली थी उस पे उनका अधिकार था और उन्होंने अपनी भूमि दान में भी दी थी। उसके भी रिकॉर्ड्स पाए गए हैं। दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज द क्वीन, वन ऑफ द few known from early Indian history, and her situation was therefore exceptional. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि as she was the queen, क्योंकि वो रानी थी, इसीलिए ये एक्सेप्शनल हो सकता है कि उनको ये अधिकार हो, बाकी औरतों को उस समय ये अधिकार ना हो। It is also possible that the provision of legal texts were not uniformly implemented. ये रूल्स जो थी ये हो सकता है कि यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट ना हो। ये रूल्स हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए हो, कि राजाओं के लिए एक, राजा और रानियों के लिए एक रूल हो और दूसरों के लिए, कॉमन पीपल के लिए रूल ना हो। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन. These included Brahmins and peasants as well as other who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives, and according to the inscription, they would have to obey the new lords of the village and perhaps pay him all these dues. Land grants such as this one have been found in several parts of the country. भूमि अनुदान का जो सिस्टम था वो बहुत से पार्ट्स में, इंडिया के बहुत से पार्ट्स में इसका प्रचलन था. There were regional variation in size of the land. रीजनल वेरिएशन, क्षेत्र में जो भूमि अनुदान दी जाती थी, हर क्षेत्र में ये अलग अलग साइज़ की होती थी, कहीं बड़ी तो कहीं छोटी. From small plot to vast stretches of uncultivated land and the right given to the donees, the recipient of the grant. The impact of the land grant is the subject of heated debate among the historians. आज भी ये एक heated debate है कि land grant किस तरह से किया जाता था और क्यों इसके साइजेस इतने डिफरेंट थे. Some feels that land grant were the part of the strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. Others suggest that land grant were indicative of the weakening political power. कुछ historians का मानना था कि राजा कृषि क्षेत्र को या कृषि के बढ़ावे के लिए लैंड ग्रांट भूमि अनुदान में देती थी, और कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि लैंड ग्रांट व इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर. राजा ज़मीन या लैंड या भूमि जो अनुदान में देती थी, ये उसके पावर को कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल पावर के डिक्रीज़ के तौर पे हम देख सकते हैं. As the kings were losing control over their summons, they tried to win allies by making grants of land. They also feel that kings try to project themselves as Superman. हाँ, और ये भी कहा है, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना था कि राजा अपने आप को काफ़ी बड़ा दिखाने के लिए या सुप्रीम दिखाने के लिए लैंड ग्रांट भूमि अनुदान में देते थे. Because they were losing control, they wanted to present at least a facade of power. भूमि अनुदान देकर राजा अपने प्रजा के बीच में प्रसिद्ध होना या फेमस होना चाहते थे, इसीलिए भी वो लैंड ग्रांट या भूमि अनुदान की प्रथा इन लोगों ने चलाई. So this was all about the topics which I have covered in this chapter, in this part.
Hope students you are doing the other lectures as well. So kindly go through the other lectures even. Thank you.